Priyanka Gandhi is making her electoral plunge, her debut in Wayanad, there is a sexist and a misogynist shocker that is coming in from Congress's Punjab chief, who said that he is looking for a wife who cooks for him. This is coming as also a Bengal mantri has allegedly called Rekha Patra, quote-unquote, rejected Mal. The BJP has slammed this Mal Mandi mindset of Team India. There is a massive controversy over Raja Waring's comment after he made a shocking sexist joke on his own wife. Now, he says that his wife leaves at 6 a.m. She wears bindi and lipstick, and he wants a wife who will instead cook for him. तड़के सोची बिंदी ला के निकल जाती 6 बजे जाती है तो रात को 11 बजे होती है मेरे तक गोलगले पक नहीं मैं तो मेरे तक कमो गई नहीं सच्ची गल है तुम दसो 6 बजे जनानी जाए तो 11 बजे आते तो मेरे गालियां बजदियां बोलो मैनू तो कोई लांगरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड़िया करे इस तो बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे भोग चल पैणगे जगराते चल पैणगे मैं तो रीके करूंगा कि किथे है मिल जा के 2 मिनट आके. Now, there is also a response from the BJP that has called out the small Mandi mentality of the Congress. They question, why is Priyanka silent? Why has Rahul not said anything? And they also ask whether the party will take any action against the errant neta. Congress's pehchan is Mahila ka Appan, the sexist, misogynistic and absolutely disgusting comments made by Raja Waring, and that too about his own wife. Like she wears bindi, lipstick at 6 a.m., goes out, comes back at 11 p.m. She's of no use to me. She has gone out of my hands. Find someone else for me. This shows the mindset of Congress. Congress is a anti-woman party, and Priyanka Vadra is quiet. This shows that how Mahila Virodhi Congress party has become. And they claim ladki hu lad sakti hu. Actually, it is not so. Tell us, what action will they take on leaders like Raja Waring? Will they take action on him, or they will be quiet? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ मेरा रोटी का प्रबंध कर को छोटे बच्चे तो नाल ही ने सारे ते जेड़े काम करदियां लेडीज वो बच्चे नहीं सांभदियां. The Congress, on the other hand, has defended that comment that has been made by Raja Waring, and they say that entire comment has been taken out of context. मैंने आपको इसलिए कहा मैं राजा वड़िंग जी को भी जानता हूं क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मेरे साथ ही की थी बतौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के और उनकी धर्मपत्नी जो बहुत काबिल हैं, बहुत लायक है और बहुत मेहनती हैं, उन्हें भी जानता हूं. उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर इन सारे मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है. हरियाणा और पंजाब में आज मुद्दा है डीएपी उपलब्ध ना होना. कौन नीला कमीज पहनता है, कौन सफेद कमीज पहनता है, कौन लिपस्टिक लगाता है या कौन नहीं लगाता है, ये मुद्दे नहीं है. वो महिलाओं की अपनी मर्जी है कि वो क्या वेशभूषा या किस प्रकार का मेकअप करें. उसमें मैं या आप कौन हैं सवाल उठाने वाले. Let's also get in our colleague Manoj, who's joining us, and he has more details on that story. Manoj, क्या इस कांग्रेस नेता से कोई भी बातचीत हो पाई है? क्या उन्होंने एटलीस्ट सॉरी बोला और कहा है कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी? देखिए बिल्कुल इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि खुद अमृता वड़िंग जिनको लेकर कमेंट किया था राजा वड़िंग ने वो अब सामने आई हैं और उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके रवनीत बिट्टू पर ही निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि जो बातें राजा वड़िंग ने कही हैं इस तरह की बातें वो हमेशा से करते रहे हैं. ये उन्होंने तो बल्कि इसे अपने परिवार की परंपरा बता दिया और कहा कि कभी भी वो पढ़कर भाषण नहीं करते, चाहे राजा वड़िंग हो या वो खुद हो. जो बात दिल में होती है वो उन्होंने कही. वो
दरअसल बताना चाह रहे थे, यानी कि राजा वडिंग को के लिए अमृता वडिंग ने कहा है कि राजा वडिंग सिर्फ ये बताना चाहते थे कि सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे से 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहती हूं। सिर्फ इतनी सी बात थी जो हंसी मजाक में कही गई थी, लेकिन बीजेपी ने इसको दूसरे दिशा में मोड़ दिया और इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है। उन्होंने तो बाकायदा ये भी कहा है कि रवनीत बिट्टू ने उनका अपमान किया है और वो इसको लेकर बाकायदा मुख्य जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको पत्र भी लिखना चाहती हैं और उनको कहना चाहती हैं कि रवनीत बिट्टू जैसे लोग जो चुनाव हारकर भी मंत्री हैं, उनको आपने मंत्री बनाया और दूसरी तरफ महिला सम्मान की बात आप कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इस पे अमृता वडिंग खुद सामने आई है और उन्होंने सफाई दी है कि बेहद हल्के अंदाज में, हंसी मजाक में ये बात कही गई थी। जी ओके, एंड मनोज, बहुत लोग कहेंगे कि ये राजनीति है, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि उस कमेंट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश है, क्योंकि क्लियरली अगर पत्नी इस समय कुछ बोलेंगी, मुझे नहीं पता कि वो कैसे प्ले आउट होगा, बट हमारे साथ रहिएगा। लेट्स अगेन फॉर आवर व्यूअर्स ट्यूनिंग इनटू द ब्रॉडकास्ट एंड वंडरिंग व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट, कैन अ कमेंट लाइक दिस रियली बी नॉर्मलाइज्ड? दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द पंजाब कांग्रेस चीफ स्पीकिंग फॉर हिज वाइफ. Listen into what he says. कमो गया जमा कर जो न्याणे निके निके एक घालड़ी तड़के सोची दिंदी ला के निकल जाती 6 बजे जाती है, फिर रात को 11 बजे होती है। मेरे तक गुलगुले पक नहीं, मैं तो मेरे तक कमो गई यही सच्ची गल है। तुम दसो 6 बजे जनानी जाए तो 11 बजे आते तो मेरे गालियां बजदियां। बोलो मैनू तो कोई लांगरी भाल दियो, लांगरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड़िया करे। इस तो बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे, भोग चल पैणगे, जगराते चल पैणगे। मैं तो डीके करूंगा भी किथे है, मिल जा कदे 2 मिनट आके। Let's also get in Manoj back as we've played out their entire reaction once more. तो मनोज, माफी की कोई बात नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस तरह के कमेंट को उनकी पत्नी ने कहा है कि मजाक में इस तरह बात बोल दी, लेकिन वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं है। लेकिन आप तमाम अगर उस वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, देखिए जेस्ट में अगर कुछ बोला भी जाए, आप तमाम लोगों के बीच ये बात बोलते हैं, लोग हंस रहे हैं। जब राजा वडिंग खुद ये बात बोलते हैं तो उनके आसपास जो तमाम लोग खड़े हैं वो हंस रहे हैं। तो अगर ये किसी महिला को डिग्रेड करना नहीं है तो क्या होगा, और क्या इस तरह की बातचीत नॉर्मलाइज की जा सकती है? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। भले ही वो हंसी मजाक में कही गई बात हो, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का ये स्टाइल रहा है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही भले ही हंसी मजाक में कही गई, ये किसी भी महिला के सम्मान में इसको गलत ही समझा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मानसिकता भी दर्शाता है कि राजा वडिंग महिलाओं के प्रति क्या वो सोच रखते हैं। क्या जो पत्नी है या जो कोई महिला है उसका काम सिर्फ उसकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ घर के कामकाज है, रोटी ही पकाना उसकी प्रायोरिटी है? क्योंकि आप अगर ध्यान से सुने तो राजा वडिंग कहते हैं कि मुझे कोई लांगरी यानी कि कोई कुक ढूंढ दीजिए जो मेरे घर का खाना पका दे, और वो सुबह से शाम तक देर रात तक बाहर रहती हैं तो मेरे काम की नहीं रही। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है, जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आपत्ति जताई गई है। बीजेपी के तमाम लीडर्स ने इसको लेकर निशाना साधा है अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर, लेकिन अब वो खुद उनकी पत्नी ही इसे डिफेंड कर रही हैं और बता रही कि उनका स्टाइल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं महिला सम्मान से तो जुड़ा हुआ ये जरूर है, और महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच है उसको ये जरूर रिफ्लेक्ट करता है।